Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. After a very long wait, IIM Jammu is now out with its IPM result, but it has been very unexpected in terms of the criteria that is being followed for the preparation of merit list that is being questioned. So let's just understand and answer the important questions around it. So without any further ado, let's begin. If you come on IIM Jammu's website, you come over here, admission 2024, you have the IPM 24-29 merit list available. If you open the merit list, you have the application number, category, and the status. There are people who are selected, about 140 of them, because there are 140 seats. And then there are about 392 people who have been waitlisted. Now, this is the total number of waitlists across categories and not just one particular category. That's how it's like. Till now, the result looks normal. Only when you ask your peers, who've scored really high, if they have gotten it or not, you realize कि उनको selection नहीं आया है. People who have scored in general category 300, even those people are not even waitlisted. I'm talking about general male candidates. So that is very astonishing fact. There hasn't been a single general male student that is selected in the first list. So again, that is very shocking, because if you look at IIM Jammu's admission policy for 2024, what you realize over here is that GMAT score is given 95% weightage, gender diversity is 5%. Now, if you calculate this 5%, this should ideally come to about 21.05 marks. That is, a female scoring 300 marks is equivalent to a men or a male scoring 321.05 marks. So ideally जो difference होना चाहिए वो 21-22 mark का ही होना चाहिए, but this year it hasn't been the case, and it is very difficult for a lot of people to digest the result. But I'll consolidate it for you basis of the data that we have. हमारा calculator था, wherein a lot of you had put in your scores as well. So basis of everything, all the data points that we had about GIPMAT results, this is what we came about. First of all, not a single male student in general category has been selected for IIM Jammu's IPM program. So no name in merit list, but the last selected female was at 298. In the waitlisted male case, however, there is somebody who has scored 311, who is a male candidate, who is the last waitlisted male. On the other hand, in the case of last waitlisted female, it is 269. Difference is of 42 marks. NCOBC के केस में आप सारे डेटा जो है आप सामने देख सकते हैं, मैं सब बोलूँगा नहीं, बट व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि ये डिफरेंस इन मार्क्स आइडियली सिमिलर रेंज में होना चाहिए. मतलब अगर 5% डाइवर्सिटी दे रहे हो तो वो 21-22 के राउंड हवर करना चाहिए हर कैटेगरी में, हर जगह. ऑफकोर्स जो नीचे आप जाते जाएंगे बाकी कैटेगरीज हैं जहाँ आपको नेगेटिव में भी दिख रहा है, उसके लिए रीज़न ये है कि यहाँ पर क्योंकि बच्चे कम हैं, तो ऐसा नहीं है कि 372 मार्क्स 272 मार्क्स लाने वाले 2-3 बच्चे हैं और फिर 271 भी है, 270 भी है. यहाँ जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाती है. दैट the person who's getting selected last is at let's say 147 marks, and उसके बाद सेकेंड लास्ट वाला 155 में, तो बीच में स्पेस होता है, इसलिए यहाँ पर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा. बट एटलीस्ट ऊपर वालों में वो सिमिलर फिगर होना चाहिए था, बट वो नहीं है. इन द केस ऑफ जनरल वेट लिस्टेड इट इज़ 42, NCOBC सेलेक्टेड 23, वेट लिस्टेड 13, EWS selected 48, EWS वेट लिस्टेड 21. सो इट इज़ here and there कोई accurate clarity नहीं आ रही, because if you look at it, how do you calculate the diversity point? अगर आपका 95% वेटेज दे रहा है ये जिपमैट के स्कोर को, राइट, सो दैट मीन्स अगर आपके 400 में से 400 आ रहे हैं, सो दैट इज गिविंग यू 95 पॉइंट्स. दैट मीन्स अगर आपको देखना है कि एक पॉइंट कितने कितना कॉम्पोनेंट होल्ड कर रहा है, सो दैट शुड बी 400 डिवाइडेड बाई 95. सो दैट इज हाउ मच ईच पॉइंटर इज वर्थ, एंड बिकॉज 5% आपको डाइवर्सिटी है तो फीमेल शुड आइडियली गेट 1.05. सिमिलरली 10% में वो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, एंड 15 में हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 50. सो ये हमारे स्टैंडर्ड नंबर्स आ रहे हैं बेसिस ऑफ व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम द जेंडर डाइवर्सिटी क्राइटेरिया फॉर IIM Jammu. इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आइडियली वो सेम ब्रैकेट में चलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक IIM बोधगया जहाँ पर उन्होंने बोला 30% हमें विमेन कैंडिडेट्स चाहिए कोर्स में, राइट. तो अगर वो 30% नंबर मीट नहीं हो रहा तो हम उनकी कट ऑफ नीचे कर देंगे. यहाँ ऐसा नहीं बोला है, यहाँ बस ये बोला है कि हम डायरेक्टली बोनस मार्क्स दे देंगे. सो बोनस मार्क का केस ऐसे चलना चाहिए था, बट क्या हमें कोई स्टैंडर्ड नंबर दिख रहा है कि 21 से डिफरेंस है मेल फीमेल में हर जगह? नहीं. 44 से दिख रहा है? नहीं. 70 से दिख रहा है? नहीं. सो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इन्होंने मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट करी है. क्या इन्होंने सिर्फ आपका स्कोर और जेंडर डाइवर्सिटी कंसिडर करा है, और दे हैव कंसिडर्ड 10th and 12th एज वेल? वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट. सो दैट इज़ वन थिंग. अब जो भी स्कोर्स हैं, जो भी डिफरेंस है एक मेल और फीमेल में, आप देख सकते हैं इस कॉलम में सारे सिलेक्टेड वाले हैं, इसमें सारे वेट लिस्टेड हैं, और ये लास्ट बच्चा जो है मेल या फीमेल उसका है. अगेन यहाँ पर थोड़ा 21-22 का फर्क हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो फॉर श्योर हु इज़ अ मेल कैंडिडेट, हु इज़ अ फीमेल कैंडिडेट. वी हैव मेड दोज assumption by looking at their names. So we have ran a model on that to get their genders. But again, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, but by and large this is how the result will be like.
इसको और अगर हम इलेबोरेट करते हैं और इनकी वेट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट और वेट लिस्ट दोनों देखते हैं, अगर मेरिट लिस्ट के ये जो बच्चे हैं और जो ये एप्लीकेशन नंबर है, अगर मैं इनके साथ इनका स्कोर भी लिखता हूँ, तो फीमेल के केस में 340 से लेकर आप जनरल में जाएंगे 298 तक सेलेक्ट हुए हैं और एक भी मेल कैंडिडेट नहीं है। मेल कैंडिडेट आपका NC-OBC से 277 मार्क्स से आना चालू होता है। ऑल्दो ये भी 277, आई थिंक दिस शुड बी अ फीमेल, इट शुड नॉट बी अ मेल कैंडिडेट, राइट। तो यहाँ पर ये एक आध एरर हो सकता है, बट 331 से यहाँ पर चालू हुआ है, विच इज़ लाइक 272 है यहाँ है और यहाँ 331 है। सो दैट इज़ रफली अगर आप देखते हैं तो 50 मार्क का डिफरेंस यहीं पर आ रहा है, राइट। सो ऐसे चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेलेक्टेड बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेल सेलेक्ट ही नहीं हुए, देर आर 50 ऑड पीपल हु आर सेलेक्टेड, बट नन ऑफ देम आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड दैट इज़ द बिग क्वेश्चन ओवर हियर। इससे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ मेरे लिए ये है कि अगर आप यहाँ आते हैं वेट लिस्ट में, तो वेट लिस्ट में भी अगर आप देखते हैं, ठीक है जा रहा है, उसके बाद मेल आपका 347 विच इज़ लाइक ऑल इंडिया रैंक 1, that person is getting 106 waitlist rank in the IIM Jammu's admission process, and the second person who's getting after him, second male, 107 rank is 340. आइडियली अगर एक सेट मार्क्स दिए होते तो 347 और 340 के बीच में कुछ फीमेल्स आनी चाहिए थी, जो कि वो उनके बोनस मार्क के बाद जाके इस रेंज के बीच में आती, राइट। बिकॉज अगर यहाँ सारे 273 के बच्चे हैं और यहाँ 272 के बच्चे हैं, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल 347 माइनस, अगर हम 347 है और 273, अगर हम इसे माइनस कर देते हैं, राइट, 347 माइनस 273, दैट गिव्स अस 74 मार्क्स, राइट। सो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर इन बच्चों को जो भी फीमेल्स है उन्हें +74 मिला था, राइट, तो +74 यहाँ कर देते हैं, तो ये सारे इतने मार्क्स में हो गए, ये हमारे मेल हो गए 347 पे और 340 पे। अब अगर सबको +74 मिला है तो यहाँ भी +74 मिलना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो ये 346 आ गए। अगर ये 346 है तो ये 340 के नीचे कैसे है? इसे आइडियली ऊपर होना चाहिए था। सो इन दैट केस देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। वन इज दैट they're not just considering your score as well as gender diversity, but there is something else which is being considered as well. इसकी होने की likelihood कम है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें तो ये सिक्वेंशली ही चल रहा है। ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा कि फीमेल के अंदर कोई 295 वाला फीमेल ऊपर है, 296 वाली नीचे है, विच कुड हैव हैपेंड अगर उनके 10th और 12th के परसेंटेजेस अलग होते। तो वो होते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सेकेंडली व्हाट इज़ पॉसिबल ओवर हियर इज़ दैट इन्होंने कोई ATS कैलकुलेशन का सिस्टम फॉर्मूला यूज़ करा है, जो कि इंदौर के केस में होता है, बट जम्मू में आज तक तो एटलीस्ट नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता इन्होंने करा है या नहीं करा है, व्हाट इज़ द केस ओवर हियर। थर्ड इज़ दैट द रिजल्ट इन इट सेल्फ इज़ इरोनियस। लुकिंग एट द रिजल्ट आई फील लाइक कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट अगर वो है तो क्या वो IIM जम्मू एक्सेप्ट करेगा, उसे रेक्टिफाई करेगा? दैट रिमेन्स टू बी सीन। आई रियली होप इफ इन केस देर इज़ एनी एरर, they accept it and they correct it, because that will instill a lot of confidence in terms of all the people who are appearing for IPMAT, because a lot of people have messaged me today यार, saying कि सर हम IPMAT के लिए पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर सिलेक्शन होना ऐसा इतना अनप्रिडिक्टेबल है, मेरे 330 320 मार्क आने के बाद भी मेरे को सिलेक्शन नहीं मिल रहा है इन द केस ऑफ जिपमैट, तो फिर मैं इसके लिए पढ़ ही क्यों रहा हूँ, राइट। सो पीपल हैव स्टार्टेड टू लूज देयर ट्रस्ट इन दीज एग्जामिनेशंस आफ्टर ऑल दैट हैज़ हैपेंड दिस ईयर, एंड नाउ इवन विद जिपमैट विच एज एन एग्जामिनेशन इज़ वेरी स्मॉल, अगर वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सो दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. So I believe, IIM Jammu, if somebody from their administration is watching this video, the best possible action is, if in case they are using, if you guys are using any particular methodology of calculating the result, which is not what you are already mentioned on your website, अगर आप ये नहीं use कर रहे हैं, if there is some other methodology which is at play, because you say that you have the right to modify this admission criteria at any given point in time, at least let people know कि हाँ, दिस इज़ द मेथडोलॉजी दैट वी हैव फॉलोड, विच इज़ वाई रिजल्ट ऐसा है. इसलिए काफ़ी सारे इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी मेल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ. दैट इज़ फेयर एंड फाइन. एटलीस्ट पीपल विल हैव अ क्लोजर एज टू वाई दे आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड. उन्होंने किस क्राइटेरिया में कहाँ पर मार्क्स नहीं स्कोर कर रहे जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. एंड इन केस अगर हो जाता है, गलती हमसे भी होती है, सबसे होती है, अगर मे बी एक गलत फार्मूला लगाने की बात होती है, एक्सेल में आपने एक गलत फार्मूला लगाया एंड पूरा रिजल्ट आपका इधर उधर हो जाएगा. हो सकता है शायद ऐसा कुछ गलती हुआ हो, विच इज़ टोटली फाइन. ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल. अगर ऐसा हुआ है, सो दे रेक्टिफाई इट फ्रॉम देयर एंड अगेन दैट विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द पीपल. इसके अलावा क्या कोई तीसरा चौथा पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजल्ट में? आई एम नॉट श्योर. इट डज नॉट लुक लाइक अ केस जहाँ पर से 5% जेंडर डाइवर्सिटी दी है. ज़्यादा दिख रहा है, बट कितना दिया है, क्या दिया है, आई एम नॉट श्योर एट ऑल. ये आपका रिजल्ट है. वेट लिस्टेड बच्चे अगर आप देखते हैं तो मेल फीमेल के केस में भी नंबर मेंटेन्ड है, यहाँ पर भी नंबर मेंटेन्ड है. दिक्कत है कि
एटलीस्ट जनरल के केस में यू हैड नो शॉट ऑफ गेटिंग इन टू IIM Jammu despite having an all India rank 1 in JIPMAT, which is very disheartening. But the thing is कि to extend this conversation further, I know वीडियो लंबी हो रही है, अगर हम 2-3 साल पहले की भी बात करें, देर हैज़ बिन अ केस जहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 जो था जिपमैट में, उस बच्चे को IIM जम्मू ने वेटलिस्ट करा था. उस टाइम पर ऐसा कोई आउटरेज या फिर इतना डिससेटिस्फैक्शन या फ्रस्ट्रेशन नहीं था. रीज़न बीइंग उस टाइम क्राइटेरिया क्लियर था कि आप 60% जो वेटेज है वो आप दे रहे हैं जिपमैट को, 15% इज़ 12th, 15% इज़ 10th एंड 10% इज़ जेंडर डाइवर्सिटी. Because it was all clear, it was evident as to why that person, despite having that all India rank 1, is not getting selected. So that was fair कि हाँ लोगों को लगता था कि यार हाँ इतना जेंडर डाइवर्सिटी क्यों दे रहे हैं, 10-12 को वेटेज क्यों दे रहे हैं, बट एटलीस्ट उनको आइडिया था कि किस रीज़न की वजह से ऑल इंडिया रैंक 1 भी वेट लिस्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है. इस साल में दिक्कत ये है कि उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई मैंने इतना अच्छा स्कोर करा है और अगर मैं 5% का जेंडर डाइवर्सिटी भी अकाउंट कर दूँ उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी आंसर्ड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटीज़. If they do that, I'd be really happy to cover that as well, in a future follow up to this video. But other than that, let's just wait. I think you guys, if in case you feel like the result is not appropriate, you have the right to information. You can put up an RTI, get a clarification from IIM Jammu as to why the result is the way it is, and let's hope that they are transparent and honest about the methodology that they have used for calculating the result. At the same time, in terms of IIM Bodhgaya's result, right? A lot of people would say कि IIM Bodhgaya के रिजल्ट में इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं होएगा. आई एम होपिंग कि वहाँ के केस में ऐसा कुछ ना हो, जो क्राइटेरिया पे ऑलरेडी बता के चल रहे हैं वही वाला फॉलो हो. सो अगर वो होता है आई थिंक रिजल्ट फिर नॉर्मल होना चाहिए, बट मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज सोचा तो हमने जम्मू के लिए भी था, बट दैट हैज़ नॉट बिन द केस. सो दैट इज़ अगेन समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा वेटलिस्ट मूवमेंट पे फ़र्क पड़ेगा जम्मू के ऐसे रिजल्ट होने की वजह से. आई डोंट थिंक ऐसा एज सच कुछ ज़्यादा होगा, बिकॉज आप देखें तो IIM बोध के जम्मू को एक मान के चलें, उसके हिसाब से रिजल्ट और वेटलेस मूवमेंट कैलकुलेट करें. सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. बाकी लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक. इफ इन केस देयर इज एनी फ्यूचर अपडेट आई विल पुट इट अप एज अ फॉलो अप वीडियो और इन द कमेंट सेक्शन. If in case you have any queries and concerns, you can also discuss in the comment section, and I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye bye.